Namaste. Truth and justice have become words which seem to be devoid of any meaning. While we would like to live our lives by these values, unfortunately they're very hard to come by in today's world. But there is no cause for despair. We have amongst us many champions of truth and justice. But yes, they're rare. But today we will meet one such rare and vibrant personality, Dr. Udit Raj. भारत माँ की पावन धरा पर अनमोल किए काम। भारत माँ की पावन धरा पर अनमोल किए काम। सारे जहां में शान है जिसकी, उदित राज है नाम, उदित राज है नाम। Dr. Udit Raj is an ex-IRS and a BJP MP from Northwest Delhi. He is the chairman of the All India Confederation of SC/ST. Based out of Delhi today, the journey of his life began in the village of Ramnagar in Allahabad district of Uttar Pradesh. I was born and brought up in a village known Ramnagar. My father was ex-army man. Mother was housewife. Mother had no education. Father had some education, and father was a hard temperament person. Mother was very soft. इनके पिताजी फौज में थे और माता घरेलू कामकाजी। पिताजी सेवानिवृत्ति के पहले ही नौकरी से इस्तीफा देकर व्यवसाय एवं खेती का काम करने लगे थे। खेत ज्यादा न होने के कारण व्यवसाय करना जरूरी था। Our life support subsistence that I can say was from agricultural activities, and also my father used to do some businesses like selling vegetables, fruits, etc. जो लैंड होल्डिंग थी बहुत छोटी थी, 1.25 एकड़ रही होगी, उसी से गुजारा होता था। And the village wasn't connected with the electricity, road, nothing, and it was a thatched house, mud house where I lived. मेरे 2 भाई हैं, 2 बहन। Born to the Dalit family of Kalan Singh and Sukhtei, Dr. Udit Raj has personally gone through the rigors of poverty and faced the injustice of casteism and untouchability from an early age. I went to a school in vicinity of my village known as Samogra. That was a primary school. I did 5th from Samogra primary school. My mother wasn't aware of that in which class I was studying. प्राइमरी पाठशाला स्कूल समोगरा से 5 का क्लास जब पास कर लिया तो फिर लाला रामलाल अग्रवाल इंटर कॉलेज सिरसा में है, वहाँ दाखिला लिया क्लास 6th में। पैदल ही आना जाना होता था, पाँव में चप्पल होती थी कभी नहीं। उदित राज बचपन से ही बड़े न्यायप्रिय स्वभाव के थे। उनके बालक काल को असाधारण रूप से लोग देखते थे, क्योंकि ये मनुवादियों के उन बच्चों से झगड़ा करते थे जो अन्य गरीब और दलित बच्चों को सताया करते थे। उस समय दलित छात्रों के साथ छुआछूत बहुत जबरदस्त था, चरम पर। उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया और हम और डॉक्टर उदित राज अकेले हम लोग सक्षम थे लड़ाई लड़ने में। He was known to involve himself in disputes where he would advocate the cause of truth and justice, much to the dismay of his parents. He would also take on his father if he found him dominating his mother. He may have been an average student at the local school, but he stood out because of ferocity of his beliefs, his innate sense of honesty, and his relentless desire to know and to learn. These were all qualities which later went to make him the man he is today. कॉलेज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो दौर था एक बड़ा ट्रांजिटरी दौर था। मैं वहाँ पर शहर में रहता था। घर से रेलवे स्टेशन लगभग 5 किलोमीटर बाई साइकिल आते थे। साइकिल वहीं रखने के बाद फिर 25-30 किलोमीटर बाई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी।
इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी तक फिर पैदल जाना। 10+2 में एक किसी साथी को लेकर के झगड़ा हुआ था जिसका जातीय रंग दे दिया गया था और वहाँ भी स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा बना। फिर उसी समय किसान आंदोलन से भी जुड़ा, मजदूरों से भी जुड़ा और इतना व्यस्तता हो गई कि मैं कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाया। परीक्षा ठीक नहीं हुई तो सुझाव दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में आ जाइए, में पढ़ाई अच्छी होती वहाँ जा सकते। तो यहाँ प्रयास किया तो जर्मन लैंग्वेज थी, उसमें एडमिशन हुआ। In 1980, Dr. Udit Raj moved to Delhi and enrolled at the famous JNU. गांव से जब चला तो पैसा था नहीं, तो पिताजी ने 200 या 300 रुपया लोन लिया था, कर्ज लेकर के दिया। एक टूटी हुई सूटकेस थी और प्लास्टिक चप्पल और एक जोड़ी कपड़ा था, उसी में यहाँ जेनू आ गया। नया दुनिया थी पूरी। एक गांव था, गांव से फिर इलाहाबाद शहर आए और इलाहाबाद शहर के मुकाबले में अगर जेनू में देखा जाए तो बड़ा परिवर्तन था। तकलीफ तब आई जो जर्मन लैंग्वेज सिखाया जा रहा था तो वो इंग्लिश मीडियम से सिखाया जा रहा था और मैं इंग्लिश समझता नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डिस्करेज हो गया शुरू से। यह भी एक कारण था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी स्टूडेंट विंग में बनी रही, जो कि एकेडमिक की तरफ झुकाव मेरा हो नहीं पाया। Having grown up in the heartland of Uttar Pradesh, politics was literally in his blood. Even here in Delhi, he was unable to stay away from politics. So he joined the Student Federation of India and continued to involve himself in social political issues. रात में जो डिबेट होते थे जेनू में नेशनल इशूज पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसको सुनना, समझना, धीरे धीरे एक वैल्यू वो जेनू की इनकलकेट होने लगी। वैल्यू थी, हाईली इंटेलेक्चुअल थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर नेशनल पॉलिटिक्स। और फिर एक स्ट्राइक हुई जेनू में 83 जून में, और जिसमें 400-500 स्टूडेंट्स तिहाड़ जेल गए, उसमें मैं भी था। सब हॉस्टल खाली कराए गए। But he could not escape his circumstances. Poverty and deprivation continued to knock his doorsteps in Delhi as well. While he gave tuitions to survive, it was always an uphill struggle to feed and clothe himself. ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने एक ही ऑप्शन था कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब लें, और मेरा ख्याल 84 या 85 है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो PCS का फॉर्म मैंने भरा। उसका एग्जामिनेशन सेंटर मेरठ में था, और मेरठ में एग्ज़ाम देने जब मैं गया तो वहाँ पर किसान आंदोलन बहुत उफान पर था। तो मैं पूरा दिन किसान आंदोलन ही देखते रह गया और एग्ज़ाम में बैठा ही नहीं, चला आया। तो फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लिखने के लिए मैं बाध्य बना हुआ और तैयारी किया, 2-3 अटेम्प्ट लिया हुआ। तो मैंने शुरुआत करी सिविल सर्विसेज की, तो पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। और मेरे सामने चुनौती थी कि नॉलेज की और लैंग्वेज दोनों, तो दोनों को साथ सीखना पड़ा। इंग्लिश ऑप्ट कर लिया क्योंकि थोड़ा लगा कि इंग्लिश ज़रूरी है, तो डिक्शनरी लेके बैठते थे। तो जो वर्ड्स इंग्लिश के नहीं आते थे उसको भी समझते थे, और फिर नॉलेज उस सब्जेक्ट का है उसको भी पढ़ते थे। तो इस तरह से कठिनाई औरों के मुकाबले में ज़्यादा थी। Many were the nights that he went to sleep on a hungry stomach and shivered in Delhi winter due to inadequate clothing. While he spent his days in JNU library, nights were usually spent at some friend's place. Next morning would again find him back in the library. It was in these circumstances that he prepared for the civil services examination. 88 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से IRS क्वालिफाई किया। जून 89 में ट्रेनिंग में गए NADT नागपुर। In 1988, he cleared the exams and was selected for the US or the Indian Revenue Service. अगस्त-सितंबर में वुड-बी वाइफ, उनसे मुलाकात हुई, सीमा बहल। In the year 1989, I was an IRS probationer
and undergoing training at the National Academy of Direct Taxes in Nagpur. Dr. Udit Raj joined about 4 or 5 months later, sometime in May '89. And he seemed to be the odd person out amongst all the batchmates, because he was very serious, not like the other boys and girls. People used to call him philosopher and Dr. Udit Raj and professor. And I also did not pay much notice to him initially. I just thought he was another probationer who had joined late. Sometime in July, I got to know through some friends that he has developed a liking for you and he wants to be introduced to you. So when he finally did go out with me, they started teasing him. When we came back from after the date, they said, आपने तो कहा था कि आप कभी किसी लड़की के लिए वो नहीं करेंगे, आप किसी लड़की को बाहर नहीं लेके जाएंगे. Now you have lost your bet. He said कि देर कुछ ऐसी हार होती हैं जिसमें जीत होती है. He used to talk of people's social responsibilities. He used to talk of women's liberation. He used to talk of equality amongst the castes, different classes of people, and different religions also. And I also noticed that he was very truthful. He was a person of character. He was fearless. And if he would say that, yes, I'm going to be at such and such place at 7 o'clock, he would be there at 2 minutes before 7. So at that point of time, we realized that, yes, both of us were in love with each other. I wrote a letter to my father, my parents, asking my permission. तो मैंने कहा भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कास्ट एंड ऑल दैट. तो अगर आप दोनों खुश हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है. Although we are from different backgrounds, different castes, but my family had no objection to the marriage. पहली बार जब आए हमारी लड़की के साथ तो हमें तभी से बहुत अच्छे लगे. I found him good natured, simple, और बाकी पॉलिटिकली कॉन्शियस. मैंने वैसी लड़की से कह दिया कि बेटा कुछ खाना वाना सीख ले बनाना. मैं भी उससे नहीं बनवाती थी पहले. तो उन्होंने कहा कि मैं खाना बनाने वाली थोड़ी ना लेके जा रहा हूँ, मैं लाइफ पार्टनर लेके जा रहा हूँ. ऐसे विचार थे शुरू से ही. तो फिर वो फिक्स हो गया कि भाई शादी जल्दी करनी है, as soon as they get out of the academy. My father was very enthusiastic because this was the first marriage in the family. So he said that he would have it in a grand style in a 5-star hotel. He would invite all relatives and friends, and he would also, of course, contribute by way, not exactly dowry, but he would try to contribute whatever he could afford to, by way of nice clothes for him, for me, jewelry, etc., household goods. And Dr. Raj, he quarreled with my father over this. Generally, the boy demands dowry from the girl's parents, but it was the other way around here. He said, I don't want you to spend a single penny on this marriage. We want it to be a very austere court marriage, and I don't want a single penny from you. And if you have that much money that you can have a wedding in a 5-star hotel, you can give jewelry to your daughter, then I would prefer that you give it away to the poor. And it took us a very long time to convince him to have a proper marriage. We told him, look, our relatives are expecting it to be done that way. At least for their sakes, you should say yes. But at every point of time, he protested, and he was very much scandalized by the expenditure we were incurring. और 24 मार्च 90 को शादी हुई. और घमंड का तो नाम ही नहीं है इनमें. बहुत सिंपल, सादे, मुझे इतना प्यार करते हैं. मतलब एक बेटा भी इतना आजकल नहीं करता होगा, इतना सम्मान देते हैं और प्यार करते हैं, और मम्मी जी करते हैं. His first posting as an IRS officer was at Ghaziabad as Assistant Commissioner Income Tax in 1990. और हम लोगों की पोस्टिंग हो गई थी जुलाई 90 में. वो पहली पोस्टिंग हुई थी मेरठ में. फिर मेरठ चार्ज से गाजियाबाद दिया गया, तो गाजियाबाद में
मैं और मेरी वाइफ दोनों असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स रहे 5 साल तक के लिए। तो उस वक्त रामराज ने एक अथक प्रयास करके बहुत मेहनत किया और मेहनत करके ये कभी कभी कहें हम IAS बनेंगे। तो जब पहली बार हम लोगों को सुनाई दिया कि रामराज IAS से, तब उनसे लोगों से चर्चा होने लगी कि यार देखो रामराज ने कितनी मेहनत किया, वो तो बहुत गरीब घर का लड़का है, उसकी तमन्ना तो बहुत पहले से थी कि हम गरीबों की मदद करें, और वो आज जो अधिकारी हो गया वो तो सब बड़े घर के लड़के हैं, लेकिन ऐसा गरीब घर का लड़का तो कोई आगे नहीं। हम उदित राज की बहन लगते हैं। बचपना में बहुत तेज तर्राक रहे, पढ़ाई में बहुत खुशी होती कि मेरा भाई है। अब तो मेरे भैया इतने ऊपर हो गए हैं कि हम लोग की बहुत अच्छा लगता है। हम बड़े भाई लगते हैं, जिद्दी रहे, पढ़ाई में बहुत तेज थे उस समय में। अब वो पढ़ लिख के ऊंचाई पे गए, आप कैसे लग जाते हैं? उनकी भाभी वहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, क्राइम बहुत ज़्यादा था। फिर भी जो फाइलें आई सामने हमने जस्टिस किया, और कई बार तो हमारे जो ITO वगैरह थे और अधिकारी थे वो डरवाते भी थे कि गाजियाबाद में क्राइम बहुत है और क्रिमिनल के गुंडों के केसेस हैं, बच करके, लेकिन हमने कभी इसको नोटिस नहीं लिया। We were having a vast jurisdiction comprising Ghaziabad, Noida and right up to Modi Nagar and Murad Nagar, bordering Meerut. And he was very true to his word. He took very good care of me. We had 2 children between 1991 and 1996. And I did not have to look after the household chores or even after the children. He is very broad-minded. He says, why should you spend time in the kitchen when you can do more productive work? Being an educated lady, you can do so much more productive and useful work for the society and for the country. So why should you be there cooking and doing such trivial things? Rather, he encouraged me to do well in my job, in my career. And besides my job, I also took up studies. I did my LLB. We did it together while we were posted in Ghaziabad. After that, I also joined MBA, which I have completed. Because these responsibilities which a lady generally has to take up after marriage, I have been by and large free from those, thanks to him. तो 5 साल तक के लिए जब मैं था तो पूरा डिपार्टमेंट प्रोटेक्टेड था। एक तरफ से मेरे नाम से डिपार्टमेंट जाना जाने लगा था। हालांकि मेरे नॉर्मल कंडक्ट हुआ करते थे, लेकिन RITS थे और किसी के दबाव को कभी मैंने बर्दाश्त नहीं किया। और रिस्क अगर लेना हुआ तो रिस्क लेने में भी पीछे नहीं। और उसका कारण मैं कि सरकार केवल वेतन ही नहीं देती, लेकिन जो सम्मान देती है वो वेतन से बहुत बड़ा है। एक अरबपति भी IAS, IPS बनना चाहेगा, तो सम्मान के एवज में अगर कोई रिस्क भी उठाना चाहिए। अगर रिस्क उठाने वाले नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खाल बचाना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी सर्विस में हैं और अपना टाइम किसी तरीके से पास कर देना चाहते हैं कि झगड़े झंझट वाली चीज़ है, पोस्टपोन कर दो, अवॉइड कर दो। हम पोस्टपोन नहीं करते थे, अवॉइड भी नहीं करते, कन्फ्रंट करते थे कि आई मस्ट डाई फॉर द डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में कई बार तो जो लोग गलत लोग थे कहते थे गब्बर सिंह, मेरा नाम दिया था। He was transferred to Delhi in 1995, where he went to serve as Deputy Commissioner, Joint Commissioner and Additional Commissioner of Income Tax. तो इस तरह से दिल्ली आ गए। दिल्ली में 96 से में पोस्टिंग हुई। 96 में बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे इनकम टैक्स में। कुछ यूनियन के नेता के साथ में कन्फ्रंटेशन हो, उनकी आदत ख़राब थी। कमिश्नर हो, चीफ कमिश्नर हो, उनको अपमानित कर देना, गाली गलौज दे देना। मेरे साथ भी ऐसा कर दिया एक बार, तो मैंने उनके खिलाफ वो एक्शन लिया कि भूल गए तब से उसके बाद, और माफ़ी मांगते फिरे। सन 1997 में तत्कालीन तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार द्वारा जब 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन करके आंदोलन शुरू कर दिया।
जुल्म तथा अन्याय जहां खामोश देख ना पाया, जालिम को जड़ से हटाने व्यवस्था से टकराया। जुल्म तथा अन्याय जहां खामोश देख ना पाया, जालिम को जड़ से हटाने व्यवस्था से टकराया। है समर्पित सेवा में जो, है समर्पित सेवा में जो ना करता विश्राम, ना करता विश्राम। भारत माँ की पावन धरा पर अनमोल किए काम, सारे जहां में शान है जिसकी, उदित राज है नाम, उदित राज है नाम। 97 में मैंने परिसंघ बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का कुल विभागीय परिसंघ। वो बना कैसे कि जब देवगौड़ा की सरकार थी और गुजराल की, तो उस समय डीओपीटी ने 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे। उसको लेकर के देश में हाहाकार बहुत मचा था, तो लोगों में बड़ा निराशा थी और परेशानियां थी। प्रमोशन को लेकर के, सीनियरिटी को लेकर के, और जो खाली पद थे उसकी भर्ती बंद कर दी गई थी। तो रेलवे डिपार्टमेंट में एक मीटिंग हो रही थी, मुझे भी बुला लिया, मैं भी चला गया। तो लोगों ने कहा कि ये ऑफिसर है, इसको नेतृत्व दे दिया जाए। फिर 97, 98, 99 और 2000 तक आंदोलन बड़ा तेजी से चला। वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी से मिला। सन 2000 में रामलीला मैदान दिल्ली में परिसंघ के माध्यम से एक बहुत बड़ी लाखों की रैली हुई। इस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, चंद्रित यादव, बूटा सिंह जैसे महान हस्तियों ने भाग लिया। उस रैली में कहा गया कि एक दिन देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर उदित राज जी होंगे। इस रैली को देखते हुए हिंदुस्तान अखबार ने भी छापा कि इस दशक की सबसे बड़ी रैलियों में डॉक्टर उदित राज जी की ये रैली है। एक बार जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं लिया और केंद्र सरकार को इस आंदोलन के दबाव में संविधान संशोधन करना पड़ा और काफी हद तक आरक्षण बचा। सेक्टर न्यायपालिका प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा उठाया है। आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी से होने न देंगे आरक्षण पर कोई आघात। प्रश्न ये सम्मान का है, देश के संविधान का है। मना के रहेंगे अपनी हर बात। सामने खड़ी है मंजिल, करना है हासिल, रहो तैयार। उदित राज के जाबाज हो तुम, इनकलाब की आवाज हो तुम। कभी न मानी तुमने हार, उसी निश्चय और दुगने बल से मन में धधकते कोलाहल से हर सपना कर लो साकार, हर सपना कर लो साकार। मिलकर खाते हैं कसम, अपना रुकेंगे ये कदम। जब तक लक्ष्य न हासिल होगा, तब तक लेंगे हम ना दम। 4 नवंबर
2001 को 10 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण करने का एक हमने आह्वान किया। तो 10 लाख तो इकट्ठा नहीं हुए, लाखों इकट्ठा हुए। सरकार बहुत ज़्यादा विरोध में खड़ी हुई और रामलीला मैदान की परमिशन भी रद्द कर दी। फिर अम्बेडकर भवन में किया गया। 10-12 हज़ार पुलिस नियुक्त की गई थी कंट्रोल करने के लिए। सीमाएं सील कर दी गई थी। जो लोग पूरे देश से आ रहे थे उनको रेलवे स्टेशन से लौटाया जा रहा था। बैनर गलत रूप से लगा दिए गए थे कि धर्मांतरण जो है कैंसिल हो गया, दीक्षा कैंसिल हो गया। अब उसी समय रामराज से मैं उदित राज बना 4 नवंबर 2001 को। डॉक्टर अंबेडकर ने जो हम लोगों को मार्गदर्शन किया था उस पर चलने का प्रयास किया गया। फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ना शुरू किया 2002-03। इसी समय ऐसा लगा कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए, तो फिर इंडियन जस्टिस पार्टी बनाया 2003 में। इन्होंने देखा कि सामाजिक आंदोलन की अपनी सीमाएं हैं और दलितों के अधिकार राजनीतिक ताकत प्राप्त करके ही सुनिश्चित की जा सकती है। सन 2002 में सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर आंदोलन में साथियों की सलाह पर इन्होंने इंडियन जस्टिस पार्टी की स्थापना की और एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के पोस्ट से छोड़ दिया। Thus began the second innings of his life, which he has devoted to actually